उमर नकल में स्टार्ट करते हैं। आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, कहाँ पे? यस, आई कैन हेयर यू। चलो दैट्स गुड। तो नकल में स्टार्ट करते हैं। आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा नहीं, मेरे पास शेयरिंग नहीं अलाउ, अब हो है? गया। नबी, चलो दैट्स थैंक गुड। यू। चलो मैंने थैंक यू। राइट्स दे दिए आपको। अभी हुआ है मुझे अलाउ। सो डू आई हैव गुड इनफ पीपल? थैंक गॉड आई हैव। By the way, can I request all of you to like turn on the camera if anybody can? It would be more interactive for me at least. That's good. Someone is doing it. So, Kavod, are we supposed to have more people या फिर इतने ही हैं बस? नहीं, वी कैन स्टार्ट नाउ। आप स्टार्ट कर अच्छा, sure, रहे sure, sure. हैं? So eventually, I'll start the session, and I'll try to make it more interactive. So, like, I don't know कितने लोगों को basic इस AI का मतलब पता है? If anybody can raise the hand, please. There's an option in Zoom to raise hand if anybody can do that. That's wonderful that at least somebody know about AI. जी So, जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Salam. जी, तो आई थिंक एआई इज फुल फॉर्म सबको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई थिंक Absolutely. एआई इज यूज्ड फॉर automating the tasks which are done by human. So for example, if you take an example of factories or machines, so if we go back 50 years, it was all human oriented, but now it's more like artificial intelligence. Everything is automated, the processes, the big companies are using it. So I think the easiest example can be the things which are done by machines, not instead instead humans. That's a wonderful example. So I'll take forward the session. So the basic point is why are we supposed to use AI in our anything that we do? I believe I have startup founders and all of you are doing something on your own. I don't know, Vikram, what are you up to? But AI is not just bound to technological things. It can be used in a lot of fields. Like I'll show it in my next slide. So this is the total annual value जो by the way this is ये नई नहीं है, ये 3 साल पुरानी है। तो I'll probably share the screen properly. ये, is it clearly visible? I believe it is. Yes. So this is the valuation of AI and analytics back in 2019, and this is by McKinsey. So you can see that like from advanced electronics to like oil and gas, everybody is being relying on AI. The primary purpose to use AI is to ensure efficiency and to make things work on their own. ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो तो एरर के चांस भी उतने कम होते हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अनदर साइड ऑफ एआई जहाँ पे अगर आप उसे गलत चीजें सिखाएं तो इट इट ट्राइज टू मेक थिंग्स द रॉन्ग वे। बाय द वे, आई नीड पीपल टू इंटरैक्ट इन द सेशन बिकॉज सेशन नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैंने बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे नहीं सेशन बनाया, सो आई वांट पीपल टू इंटरैक्ट। So this is if you talk about the VC thing back in 19, because इसके बाद properly किसी ने survey conduct नहीं किया था only on AI startups. These are the startups that have raised a lot of funding. Around नीचे लिखा हुआ है it's $55.7 billion, which is around 12.6 million per startup जिन्होंने पैसे raise किए that are AI based. Before moving forward, I would like to take any question because I want the session to be interactive. I want people to like at least learn a bit. जी जी बिल्कुल। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है Sure, कि sure. आपने बोला कि Mhm. we will not be conducting this in the technology side. तो Absolutely. can you I want what do to you mean by make that? things. मतलब मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बातें नहीं करूंगा कि आप ANN और DNN लगा लें। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज फॉर अ लेमन कि अब आई एम नॉट श्योर कि कितने टेकीज हैं इस सेशन में और कितने टेकीज नहीं है।
So for that, नहीं, but I think that the normal thing for AI, AI is mostly dependency है उसकी, technology technology पे, पे absolutely nahi. Yeah. This is in my seventh slide. You'll get to know about it. Anybody Okay. who can make a computer run can also implement AI in his or her startup. It's very simple now. So I'll move forward. These are the AI use cases currently used by the primary sectors जो मुझे अभी सुबह स्लाइड बनाने के टाइम पे मेरे दिमाग में जो रिकॉल हो रहे थे जिनका मैंने भी काम किया है. And the most interesting one in them, all of them is insurance. Like I don't know कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इंश्योरेंस कराई हुई है, बट जब आप इंश्योरेंस का कभी क्लेम लेके जाते हैं ना, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू. वो देखते हैं भाई आपने का पहले बिहेवियर क्या है, फिर आपने क्लेम किन कंडीशंस में किया है, फिर आपका बैकग्राउंड चेक उसके ऊपर, और फिर आपका क्रेडिट स्कोर कि आप इंश्योरेंस कंपनी को कितना अच्छा ट्रीट कर रहे थे इन द बैक एंड. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले मैनुअली होती थी जिनका प्रोसेसिंग टाइम 7 months was around the processing time for any insurance, but that has now been reduced to like 9 hours. Like I've personally seen the Jubilee insurance का system that take around 9 hours and then branch progress करते हुए 3 दिन में आपका इंश्योरेंस क्लेम एटलीस्ट प्रोसेस हो जाता है. पैसे में डिस्बर्समेंट इज अ सेकेंडरी थिंग, तो उसके ऊपर इट्स subjective to bank and it's subjective to the company actually. This is the funding part in any AI thing. So if you're conducting AI, if you're integrating AI in any of your startup, there's a higher chance, like यहाँ पे 15 to 50 लिखा है, but if you talk about Pakistani VCs, I personally work with Zayan Capital, Sarmaya Khan, Sai Ventures. Everybody would ask you one question कि यार automation का क्या process है और scalability कैसे achieve करेंगे automation से. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितनी कम से कम होगी, स्केलेबल उतना ज्यादा से ज्यादा होगा आपका प्रोडक्ट. लाइक आई वुड लाइक टू नो एनीबडी अगर यहाँ को अपना वॉलंटियरली अपना स्टार्टअप बताना चाहे. एनीवन? Guys, come on. I expect you guys to participate a bit. Hi, Omar. I think startups are more comfortable asking questions in the end. So you can just do it Okay, right sure. now. I'll move on the slides then. Then okay, I'll take the questions in the end. So this is what I was telling you about. AI is not technological anymore. There's a thing called AI as a service now. Amazon, Google, Azure, there are other people as well in the market, but AWS is the giant currently, having AWS SageMaker, DeepLens, Textract. There's a lot of other features that you can like just implement. All you need is to put up a clean data set. वो clean करना is a jargon, I know. आप उसे train करें, वहीं पे बिल्ड करें और वहीं से डिप्लॉय कर दें अपने किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर. एंड दिस इज एज सिंपल एज डेवलपिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट. आई नो ये बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर नाउ. ये है रेवेन्यू का यूज केस. ये मैकेंजी की रिपोर्ट है, बट ये अभी फ्रेश रिपोर्ट है, लाइक इट्स बाय 2021 आई बिलीव. And people have actually figured out that their revenue increases when they adopt AI because you have less human involvement then. And it includes all the sector. Like I've known people personally, like I don't know how many of you have heard of Rumi. Rumi has an AI based personalizing system that helps you recommend hotels as per your movement details. Then you have I believe all of you use McDonald's, KFC ki apps, specifically Food Panda. So this is all AI based personalizations. This is also one of the service that is offered by AWS. And here comes obviously मैंने नीचे इतना बड़ा इंद्राज लिखा हुआ, तो भाई मैं कहाँ इनकॉर्पोरेट करके बैठा हुआ हूँ. तो this is how things are for by our side. We have offering
AI-based bookkeeping, AI-based taxation, and then we have this AI-based financial reporting that is on IFRS standards, and this will help you get your report in IFRS report in 60 seconds, but that's in the beta testing phase. I won't be marketing my startup here anyways, so I'll probably conclude my slides. I'm not a slidey person. I tend to consult people more. I tend to put in actions rather than words. So if you have any questions, I believe I winded things up very quickly. If you have any questions, please feel free to reach out to me. Abhi. Thank you. Mr. Omer, how are you? I'm great. I don't know who's talking. Just मैं show नहीं हो रहा. जी actually this is my like a guest account. So Okay, actually sure. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था Sure. कि आपने बेसिकली ये बोला कि एआई जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, तो वो अब आप नहीं रही. एक्सप्लेन हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है वो? देखिए ना, एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, पहले एआई डेवलपमेंट बड़ी कॉम्प्लेक्स थी. मतलब आप अपना इंजन भी खुद ही बिल्ड कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग भी खुद ही कर रहे हो, और डिप्लॉयमेंट भी एंड में खुद ही कर रहे हो. बट जब से ये आप AWS की लाट देख लें या फिर आप Azure की देख लें, गूगल देख लें, लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, बट ये तीन है जिनसे मैंने खुद पर्सनली बहुत सारा काम किया है. तो अगर एक बड़ा बेसिक सोच समझ का आदमी हो, जो एक वर्डप्रेस कैलिबर का आप कह लें या फिर उससे भी छोटे कैलिबर का कह लें, जिसके पास सिर्फ उसका डेटा है. अगर आप लोग आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितनों ने AWS इस्तेमाल किया हुआ है. एंड वेट अ सेकंड, आई प्रॉब्ली ओपन अप माय AWS अकाउंट. मैं आई बिलीव मैं एक बेहतर ओवरव्यू दे सकूंगा उस तरह. वहां से आप बहुत इजीली अपनी सर्विस को भी बुक कर सकते हैं. इट ऑब्वियसली कॉस्ट यू समथिंग, बट आप अपना डेटा दें उसे, वहीं अपना मॉडल बिल्ड करें, वहीं अपने वेबसाइट पे डिप्लॉय कर दें. यू गेट ऑल द इनसाइट, यू गेट एवरीथिंग. Yeah, you are so right about this, but you know what के अगर आपको AI वर्क करना है तो you need a computer or you need an application to run that. Okay, without that application or without that computer you can't run AI. So basically AI जो है वो technically ही based है, वो नहीं, एक टेक्नोलॉजी से सेकेंड. आगे नहीं हो सकता. नहीं, मैं आपको और बता देता हूँ. जहां तक जी जी. कंप्यूटर इज कंसर्न ना, AWS ऑफर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जिसके ऊपर Okay. आपका वो AI मॉडल एग्जिस्ट करता है. तो आपको कंप्यूटर भी नहीं चाहिए. आप अपने Hello. आई थिंक वो ड्रॉप हो गए हैं, कॉल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं. Yeah, I also think that. वापस ज्वाइन कर रहे हैं. sorry, am I audible? I believe I lost you over my laptop. जी Yeah, बिल्कुल it's fine. I बिल्कुल. understand. So you guys were saying something. Sorry, I got interrupted. Yeah, so Umair bhai, actually, I'm a computer science student and I'm also doing something in cybersecurities, and I have also created a app on artificial intelligence. Okay. So I have a little bit knowledge about these kind of things. So artificial intelligence basically जो है वो applications और एक system के without वो work ही नहीं कर सकता. नहीं, Okay, आप without अपने a करंट स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना. मैं इंडिपेंडेंटली उसे रन करने की बात नहीं कर रहा. मैं उसे कह रहा हूँ कि इट्स नॉट एज टेक्निकल एज इट वाज. बहुत इजी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं अब तो. लाइक इवन अब AWS ऑफर यू अ होल बंच ऑफ पैकेजेस.
ओके ओके आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपने शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, सो No, मेरे no, दिमाग things have been technical, but वही वाली बात है ना कि making a website back in 2010 was difficult. जब से WordPress आया, people with very literate, like computer literacy can make their own website. या Moreover, इट ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बट बिकॉज ऑफ एआई देयर देयर आर चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो, कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये चांसेस हैं कि एआई जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया देखिए ना, होने एआई वाला है। एआई का बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, एआई इज हेयर टू हेल्प, नॉट टू रिप्लेस पीपल। बट हाँ, रिप्लेसमेंट उनकी जरूर होनी है जिनका काम बहुत या तो रिपीटेटिव था, मतलब अब इफ आई से कि एक बंदा सिर्फ पेज नंबरिंग कर रहा है बैठ के ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन सिर्फ चीजें पेस्ट कर रहा है, तो उसको रिपीट करना इज वेरी इजी। बट व्हेन इट या कम्स टू बट क्रिएटिव थिंग्स, लाइक अब मैंने उस दिन एक आर्टिकल बहुत एक अच्छी जगह पढ़ा मीडियम पे कि एआई इज रिप्लेसिंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग। बट एक प्रॉब्लम है, आप कभी कंप्यूटर जनरेटेड देखें ना कॉपी, तो अब गूगल भी उसे इवन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप गूगल की कभी न्यूज अभी भी पढ़ी होगी कि गूगल इज डी रैंकिंग एनी कंटेंट दैट इज जनरेटेड बाय अ सिस्टम। आई नो दैट। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक HTML कोड्स एंड CSS कोड्स एंड जावास्क्रिप्ट कोड्स, ठीक है, तो वो एक वेबसाइट को बिल्ड करने में काम आते हैं। तो एब्सोल्युटली। अभी हाँ, तो अभी एक बेसिकली एक AI की बनी थी वेबसाइट जिस पे आप डिटेल्स डालते हो और उसके बाद आपको पूरा कोड मिल जाता है, मतलब बबल एक टाइप, हाँ, आप आई यू ट्राइंग टू से कि बबल टाइप जो प्लेटफॉर्म है हाँ, जहां यू जस्ट या पोस्ट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम सो, एंड यू गेट अ कोड इन रिटर्न। यस, आई या गेट इट। एग्जैक्टली सो एक डेवलपर की 1 महीने की या 2 महीने की मेहनत वो सिर्फ 5-10 मिनट में जाया कर देता है। जाया नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। अब इवन इफ यू आस्क मी, जो मेरा बीटा पोर्टल है, लाइक उसमें मुझे हम लोगों को इवन फर्स्टली डेवलप करने में, आइडिएशन में 2 महीने लगे थे और उसकी डेवलपमेंट में हमें लेट्स नॉट से लेस देन 7 मंथ्स। अब वो क्या करता है कि जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की हर बात नहीं करूंगा, एक नॉर्मल अकाउंटेंट एक आईएफआरएस स्टेटमेंट बनाने में कम से कम 7 दिन लेता है। अगर यहाँ कोई फाइनेंस वाला हो तो वो मुझे प्लीज पार्टिसिपेट इन एज वेल। आईएफआरएस स्टेटमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, रादर देन एक बंदा वो बैठ के अकाउंटेंट को पैसे देके बनवा ले। अकाउंटेंट की अपनी ईज के लिए मैंने एक पोर्टल बना दिया जहाँ पे अकाउंटेंट सिर्फ अपनी डेटा, बेसिक डेटा एंटर करेगा, टैली के ऊपर टैली डेटा इनपुट करेगा और उसको उसकी आईएफआरएस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड एडिटेबल वर्जन भी मिल जाएगा विद इन 60 सेकेंड्स। अब उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने में हमें बहुत टाइम लगा है, बल्क ऑफ डेटा अरेंज करना पड़ा, क्लीन करना पड़ा ऑब्वियसली। तो वो किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, वो इवन अकाउंटेंट की ईज के लिए भी है। जो टेक्निकल है, टेक्निकल को एड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, लेमैन को एड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स डू एग्जिस्ट, विक्स भी एग्जिस्ट करता है। बट हर बंदे का अपना कस्टमर सेगमेंट होता है और हर बंदे को चीजों को देखने का शायद अपना व्यू भी होता है। तो मैंने जो टूल बनाया, फॉर मी इफ यू आस्क मी, इट इज फॉर द पीपल हु रन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, कि उनकी खपाई कम हो जाएगी। दे विल पे मी अ सर्टेन अमाउंट एंड दे विल गेट देयर थिंग्स डन बहुत आराम से, rather than getting into each and every one of them और फिर अपने 5-6 दिन लगाना। ओके दैट्स नाइस, दैट्स थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाय जी, आफ्ताब, मैं हाउ आर यू? एक्चुअली कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे? आई एम ग्रेट। सो बेसिकली मैं पहले तो कुछ कहना चाह रहा था, उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास जो श्योर मे श्योर। बी मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा। जो आपका जो 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 आपने कहा ना कि इज नॉट मोर टेक्नोलॉजिकल एआई अब रह गया है, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ कि उस वो ऐसे कि हमें पहले एआई पे काम करने के लिए पाइथन, पाइटॉर्च, सीएनएन, मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या फॉर्मूला सीखने पड़ते थे। अब वो चीज जो है ना, क्लाउड सर्विसेज ने या एडब्ल्यूएस ने या ऐसी जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है, उन्होंने एआई एज अ सर्विस रख दिया है कि हमें जस्ट डेटा पे पुट करें, वो हमें सारे रिजल्ट्स दे देते हैं जो हमें चाहिए। एब्सोल्युटली। हमें वो नहीं है कि हम अपने मॉडल्स ट्रेन करें उनको। मिसाल के तौर पे एक हमें बनाना है फेशियल रिकग्निशन, तो हमें हजारों इमेजेस कैप्चर करके ट्रेन करें, फिर उसको जाके डिप्लॉय करें। एडब्ल्यूएस में देता है जस्ट एक इमेज दें आपको, 99.9% एक्यूरेसी में हम बताएंगे कि ये मैच करता है कि नहीं करता है। सो इस मेरे ख्याल में यही आप कहना चाह रहे थे, मैं जैसे एक एब्सोल्युटली। एडिशन। एब्सोल्युटली।
क्वेश्चन मेरा ये है, मे बी मोर टेक्निकल। आपने कहा कि एडब्ल्यूएस में एक्सपर्टीज है आपकी, सो हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा एक एआई मॉडल है फेशियल रिकग्निशन का, सेज मेकर के डिप्लॉय करना है, सेज मेकर पे। हम्म। तो उसके अराउंड कुछ आप हेल्प कर सकते हैं हमारी? जरूर जरूर। आपका एक सेज मेकर अभी जो लैब है, स्टूडियो लैब जो होती है जिसपे हम काम करते हैं, उसमें आप अभी काम कर रहे हैं या अभी इस प्रोडक्ट की स्टेज क्या, ताकि मैं उससे आपको बेहतर गाइड भी कर सकूं, और आप मुझे ना सेशन के बाद बात भी कर लेना मेरे से, तो आई प्रॉब्ली लुक इनटू इट एज वेल। ठीक है, ठीक है। मे बी इस एरिया में हम सेशन के बाद में आपसे कांटेक्ट करूँ। हमारा अभी ये कि जरूर। एक मॉडल तो क्रिएट हो गया है, बट वी आर हैविंग लिटिल स्ट्रगल डिप्लॉइंग ऑन एडब्ल्यूएस। कोई मसला नहीं। वो असल में कुछ परमिशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं एडब्ल्यू सेज मेकर इस्तेमाल करते हुए, तो वो बस एक अप्लाई करना होता है। उसके बाद फिर ये मैं देख लूंगा कि आपका जो आपने डेटा इनपुट कर दिया था मॉडल के अंदर, यस, यस। और आपकी एक्यूरेसी, उसने आपको एक्यूरेसी रिजल्ट्स देना शुरू किए थे या फिर अभी उस तक बात नहीं पहुंची? है फिलहाल, क्योंकि सेज मेकर पे मसला आ रहा था, तो हमने EC2 पे डिप्लॉय किया है, तो वो फिर काम चल रहा है हमारा। बट हमें इवेंचुअली सेज मेकर पे रखना है इसको। वो ऑब्वियसली EC2 असल में बना एक और काम के लिए है ना। EC2 तो टेक्निकली आपको अकोमोडेट करने और होस्ट करने के लिए बना है। हाँ। नहीं वो ठीक है, आई पर्सनली लुक इनटू इट। आप मुझसे आफ्टर सेशन सो में आई मे reach out to me on LinkedIn, तो मैं probably I can have a Zoom with you as well, and then we can look into the product. थैंक यू सो मच। मैं रेफरेंस दे दूंगा इस सेशन का आपको, जरूर जरूर। कांटेक्ट। Any other questions? I had some things in the box. Is not replacement to any. Yes, Moez, you're absolutely right. AI is a helping tool rather than, मतलब सिर्फ उसने वो काम रिप्लेस किए हैं जो बहुत लाइक डज नॉट इवन मेक सेंस कि अब इंसान बैठ के वो चीजें करता रहे, बैठ बैठ के बार बार। जिस तरह एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के लिए इंसान से बेहतर कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग ह्यूमन टैलेंट? Any other question? If anybody has any question, please reach out. जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम अभी सलाम। ज्वाइन किया है, तो असल में मेरा एक क्वेश्चन है कि जरूर। शॉर्ट कोर्सेज कौन से हो सकते हैं एआई के, जिससे एआई सीखी जा सकती है, वो अगर आप बता दें। एआई के शॉर्ट कोर्सेज मैं इनिशियली तो कोई कोर्स रिकमेंड करूंगा नहीं, लाइक पेड कोर्सेज के लिए। हाँ, इफ यू फील लाइक एनीबडी फील लाइक लर्निंग एआई, यूट्यूब पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट तो खैर की बहुत अच्छी, मैंने अभी तक पर्सनली मैं गो थ्रू नहीं की, बट इफ एनीबडी इज गुड इनफ तो ही और शी कैन लर्न पाइथन इनिशियल स्टेज में। उसके अलावा अगर आपने देखना है तो पाइथन क्या कि आप उनकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना सीख लें, बेसिक चीजें सीख लें, और अगर आप उनको कोर्स करना है तो यूडेमी पे कोर्स अवेलेबल है, बेसिक्स ऑफ एआई। तो इफ एनीबडी कैन डू दैट, यूडेमी पे आपको ऑब्वियसली यू विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल। तो वो एक काफी बेहतर ऑप्शन है। बेसिक्स टू एआई नाम है उस कोर्स का। इट हैज अराउंड लाइक 132,000 स्टूडेंट्स। ठीक ठीक है। एनी Hi, अदर hello. क्वेश्चन? Yeah, I हाँ, just, I श्योर just श्योर। have one small question. If a company basically if an individual does a startup or उसका एक नया startup है, and then they are actually looking for a service which is an AI based service. तो उसके लिए because I'm speaking as a layman, as not a technical person but more of as a business person. तो अगर जे वो अपना obviously he has to provide the data and the obviously the transparency of his business as well. So are there any security concerns that should be actually looked at, और क्या startups को होना चाहिए, because obviously they're actually opening up the doors to and letting that those people who are offering the services, क्योंकि खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सर्विस थर्ड पार्टी से ले लेते हैं, तो वो डेटा जो उनको दे रहे होते हैं, तो इज देयर अ कंसर्न या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए स्टार्टअप्स को टू सिक्योर देयर डेटा एंड अदर थिंग्स एज वेल? नहीं, if I talk about the big giants, more like we personally use AWS. तो AWS की सबसे अच्छी बात यही है कि उनका एज पर द क्लेम सबसे सिक्योर क्लाउड है पूरी दुनिया में। टिल डेट नो ब्रीचिंग, टिल डेट किसी का डेटा जाया नहीं हुआ,
और सिक्योरिटी कंसर्न्स में भी आज तक हमने पर्सनली फेस नहीं किया। इवन इफ योर इन्वेस्टर आस्क यू ना कि अब मेरे पास लोगों का टैक्सेशन का डेटा, फाइनेंशियल डेटा है, इट्स अ वेरी क्रूशियल डेटा, तो रादर देन कीपिंग इट इनटू ऑन हार्ड ड्राइव जो सिस्टम में हो और सिस्टम में फिर इंटरनेट एक्सेस भी हो, इट्स गुड टू कीप दैट डेटा ऑन ऑन AWS। तो AWS की जिम्मेदारी होती है पर्सनली सिक्योरिटी की, एंड देयर इज नो ब्रीच सो फार, so there's no as such concern, but it's good to be considerate towards the security of your data. Yes, but what you're saying is basically organizations or companies who can afford AWS. मगर अगर जो बेसिक स्टार्टअप्स हैं जो कि शायद cannot take up that package, और वो क्योंकि there are a lot of third parties as well जो कि यहाँ पे ऑफर कर रही हैं, लेट्स से इन पाकिस्तान, इवन इन पाकिस्तान एज वेल, जिनके अपने वर्चुअल सर्वर्स हैं, एंड देन दे विल से दैट वी हैव दीज एप्लीकेशंस एंड वी हैव दीज सिस्टम्स एंड देन वी कैन इंटीग्रेट देम विद योर ERP और वो करके। तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि उन AIs को मतलब उन स्टार्टअप्स को बताए जाएं कि यू शुड लुक एट दीज थिंग्स इफ यू माइनस द बिग कंपनीज, इफ नोबडी कैन, इफ समवन कैन नॉट अफोर्ड द बिग कंपनीज? अच्छा, अब इसमें ना आई वुड लाइक टू ऐड अप, देखें जब आपने मॉडल ट्रेन करना है ना, तो उसके लिए इट इज एसेंशियली इम्पोर्टेंट कि आप डेटा बहुत अच्छा फीड करें उसमें। मतलब इसकी एग्जांपल वही वाली है ना कि अगर एक बच्चे को आप बचपन में एक चीज सिखा रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी हायर चांस कि उसकी वो आदतें आगे भी वही रहेंगी। तो मशीन का भी वही हाल है कि आप उसे जब प्रॉपरली डेटा इनपुट करते हैं तभी वो उससे कुछ सीखती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपना डेटा इनक्रिप्ट करके दें, तो फिर उस डेटा पैकेट को इनक्रिप्ट को फिर डिक्रिप्ट करना एंड देन मेकिंग दैट सिस्टम लर्न वुड बी टेक्निकली अ लिटिल डिफिकल्ट। सो आई वुड जेन्युइनली बिलीव कि फिर थर्ड पार्टी सर्विस ना ली जाए, क्योंकि फिर डेटा सिक्योरिटी के मेजर कंसर्न्स बन सकते हैं कि अब वी डोंट नो कि उनका वर्चुअल सर्वर फंक्शन कैसे करता है, ब्रीचेबल है या नहीं ब्रीचेबल, आर दे मेकिंग कॉपीज ऑफ देयर डेटा ऑन देयर लोकल हार्ड ड्राइव, यस और नो। even for the data security, data duplication is a part of data security, we can't take that risk. So I would, if you ask me, I would say no. Thank you. Any other question? Hello, I have a question. How are you, Amit? I'm great. How are you doing? I'm good. So my question is that, as the session said, that it empowers every startup, right? Do you think that every startup can have an AI? Moreover, yes. How? I mean, if somebody is running a magazine, do you really think that that person needs an AI to run that or something? It can help obviously- personalize. It can help you personalize the suggestions of what people read and what people are looking up to. Moreover, e-commerce brands, like I would name a few of them, even like Daraz. Everybody's familiar with the word Daraz. Daraz uses that one personalized recommendation system that if you buy a socks, you'll definitely get another socks recommendation and one shoe recommendation in your immediately below section. So personalization can work in a magazine as well, and it can do a, it can check the pattern of what a person is looking out for, and it can help the fellow advertisers advertise based on their niches. मतलब अगर आपके मैगजीन पे आवाम आ रही है और उस आवाम का पिछला बाइंग पैटर्न जूतों के ऊपर है, तो आपका प्लेटफॉर्म एज अ गो टू प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज शूज एनीवेज। Right. Thank you. No worries. I have a question. Sure. या पीछे इससे पहले क्वेश्चन आया था कि जो है जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो हैक हो सकते हैं या नहीं, और अगर हैक होते हैं तो उनको कैसे सिक्योर वगैरह किया जाए। तो आपने बोला कि आप AWS यूज करते हैं, तो AWS को हैक करना थोड़ा मुश्किल है, ओके? पर हेलो जी यू आर ऑडिबल। या बट AWS में पहले भी बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं, रूटकिट अटैक्स हो चुके हैं, डेटा ब्रीच हो चुकी है AWS की और उनके अकाउंट्स की भी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेस लाइक स्मॉल बिजनेस यूज करते हैं, जो जिनका नया नया स्टार्टअप होता है, उनका जो लैपटॉप होता है या उनकी जो डिवाइस होती है, उनमें कोई मालवेयर आ जाता है या स्पाईवेयर आ जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है, और वो स्पाईवेयर होते होते जो है उनके सिस्टम में चला जाता है एंड देन उनके डेटा में चला जाता है, जो कि बहुत वो होती है लाइक पर्सनल डेटा होती है।
तो एआई तो आपको पूरा सिस्टम बना के दे देगा, आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, आपको सिस्टम के कोड्स के बारे में नहीं पता होंगे, तो फिर आप उस सिस्टम को कैसे सिक्योर करेंगे जबकि आपने वो सिस्टम बनाया ही नहीं है, ना आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया है, ना ही आपने कोई दूसरा कोई इंजीनियर I हायर would किया है। I would like to add one more thing. आप बिल्कुल भी जीरो लेवल कंप्यूटर लिटरेसी से वो सिस्टम नहीं बना रहे, पहली बात। और दूसरी बात, ओके। आप इवन इफ यू गो टू अ वीसी, जो स्टार्टअप्स का खैर एंड टू गो होता है, इवन आस्क देम, उनका जो अब कोई भी टेक कंसल्टेंट उनके साथ भी अगर कोई आएगा तो ही प्रॉब्ली सजेस्ट यू कि आप अपना सर्वर फिजिकल मत रखें। फिजिकल सर्विस की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली, AWS is still considered to be the world's safest deposit for any database. तो अब मैं जी सेफेस्ट रूट जी। ही ऑब्वियसली ले सकता हूँ। मैं अपने आप को फुल प्रूफ करने के लिए आई कांट गो मच इनटू द, अगर मैं फिजिकल सर्वर उठा के ले आऊं। और फिजिकल सर्वर सबसे ज्यादा हैक होते हैं पाकिस्तान में, इफ यू आर अनअवेयर ऑफ दैट। इवन या एफबीआर का जो लीक था, जो ऑल्दो विंडो की वजह से हुआ था, वो उनके फिजिकल सर्वर। आई एम अ डिजिटल कंसल्टेंट एट एफबीआर। वी हैव मोर ओवर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 9 कमरों का सर्वर रूम है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, जिसके ऊपर एसी भी लगे होते हैं। तो आप अपने जी। आप प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं। आप, यू कैन नॉट बी 100% सिक्योर एनीवेज। इफ या एनीथिंग इज एग्जैक्टली। डिजिटल, इट कैन नॉट बी अरेज्ड। बात वही है। एग्जैक्टली, यू कैन बी सिक्योर एनीवेयर, बट द थिंग इज कि एक कोड आपने बनाया ही नहीं है, एक डेटा आपकी है ही नहीं, आपको एक डेटा बनी बनाई मिल रही है, तो आपको उस डेटा के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको उस डेटा के बारे में ज्यादा वो नॉलेज नहीं नहीं, होगी, अब जब बिकॉज वो डेटा चीज देखें आपको आपके बनी हिसाब से बनाई काम मिली कर है। रहा है। अब स्टार्टअप्स के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। हम्म। अगर डेटा आपके हिसाब से काम कर रहा है तो आई जेन्युइनली बिलीव, आपकी अगर वो ऐप या आपका वो बेसिक स्टार्टअप, अगर वो इट्स डूइंग गुड इन व्हाट इट इज मेंट फॉर, तो देयर इज नो पॉइंट कि मुझे उस डेटा को समझने के लिए मैं अपना टाइम लगाऊं। बात वही है कि मैं आई एम एन एआई इंजीनियर, आई एम परसुइंग माय सीएफए अपनी खुशी से, मेरे पे किसी ने मसला तो किया नहीं है। सीएफए मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज एट मैकिंजी, आई गॉट टू डन वन थिंग, कि जिसने एआई और फाइनेंस साथ जोड़ दी ना, he will make something really big. And in order to learn finance, I had to bunch into finance, and not just basic finance. I need to get a charter in finance, anyways. ओके। Thank you. By the way, I have something in the chat as well. Now, this, yes, we are done with the slides, but feel free to ask any question. And how is AI helping in marketing agencies? It helps you define your real audience. It helps you define your user buying behavior, its user basic footprints, basic footfall. There's a lot of things. Marketing agencies do a lot of research now and a lot of analysis, and AI helps them a lot. Any other question? Okay, there's a lot of techies in this room. I would expect another question, please. Nadish will get the slides once the session is over. But if you have any queries related to it, please feel free to reach out to me. Is there anything else that I can, guys, I can help you with? तो उसके लिए मुझे feel free to reach out. I'm not just taking AI based questions. किसी का कोई सवाल? Anyone? No? I believe they are done with your questions. Okay, thank you so much, Umar. I think कि अभी किसी के पास कोई सवाल नहीं है, शायद आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। नहीं, कोई नहीं. I'll be coming to NIC Hyderabad back in January, I believe. So I'll get to reach out to all of you guys, so you can have your questions then as well. And anybody who has any query can feel free to reach out to me on LinkedIn. I am available, or you can mail me at umaraf@intaj.com. Thank you Okay, very much, guys. It was thank a you. wonderful session. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.